Hello students, in this slides I am going to complete or cover the remaining topics of the electricity. Actually these topics are basically for the 10th standards. In the previous topics I have covered the topic electric potential and electric current. So the next topic is Ohm's law. Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. And at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. It means that if we are taking any conductor and in this conductor, if we increase the value of the current passing through the conductor, then simultaneously the value of potential voltage or potential difference will also increase. So we can say that at constant temperature, I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. Here V is potential difference or voltage and I is current. And we can remove this proportionality sign with a constant that is this constant is capital R. Here R is equal to V upon I. And R is the resistance of the conductor. And also we can write I is equal to V upon R, or I is inversely proportional to resistance of the conductor. It means that if we increase the value of resistance of the conductor, then the current passing through the conductor will decrease. Or we can say that if the resistance of the conductor is more, then current passing through the conductor will be less. Um, or vice versa, we can also say that if the resistance of the conductor will be less, then current passing through the conductor will be more. Next, we will see the topic resistance of a conductor. The property of a conductor which opposes the flow of current through it is called the resistance of the conductor. So basically, what is the resistance of a conductor? It is the property of a conductor because of which the current flowing through the conductor will get resistance. It means that resistance of a conductor will decide how much amount of current will flow through a conductor. कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही डिसाइड करेगा कि कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास होगा या कितना ज़्यादा करंट पास होगा या कितना कम करंट पास होगा. Next point is, as we have already seen from the formula of Ohm's law, the value of R will be equal to V upon I. It means that R is equal to V upon I. From this formula, one or two marks questions can be asked in board exams of 10th standard. कि ये तो डायरेक्टली या तो V is equal to IR के फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हो सकता है, उसमें V की वैल्यू पता दिया रहेगा, I की वैल्यू दिया रहेगा, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, या फिर किसी भी तरीके से इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस रहेंगे. नेक्स्ट, resistance of a conductor depends upon the length of the conductor, nature of material of the conductor, and temperature of the conductor. The SI unit of resistance is ohm, or we can say that 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Also question can be asked कि define 1 ohm. So 1 ohm can be defined as if 1
volt of potential difference is applied across the ends of the conductor, then and 1 ampere of current is flowing through the conductor. So in this case, whatever the resistance will be developed, that will be equal to 1 ohm. इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है उसके क्रॉस एंड्स पे और 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम. नेक्स्ट, दिस इज द न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 volt battery and a resistance of 60 ohm. What will the current in the circuit? The resistance of wire is negligible. तो इस न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 24 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 60 ओम और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर्मूला आर वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वी की वैल्यू दी हुई है 24 वोल्ट, आई कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है 60 ओम. तो आई क्या हो जाएगा? आई विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 60 इक्वल टू 0.4 एम्पियर. सो द सर्किट हैज़ 0.4 एम्पियर ऑफ करंट. तो इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओम्स लॉ से पूछे जाते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर from 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? So इस न्यूमेरिकल में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो इनिशियली 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्टेज सप्लाई लाइन से. तो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है कि कितना करंट इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करेगा जब उसके अक्रॉस 110 वोल्टेज का सप्लाई लाइन दिया जा रहा है. सो लेट अस एज्यूम द रेजिस्टेंस इन द आयरन सर्किट बी आर. तो ये एज्यूम करके कि दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस सेम है. सो फ्रॉम ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर V1 की वैल्यू 220 वोल्ट है और I1 की वैल्यू 3.4 एम्पियर है, V2 की वैल्यू दी हुई है 110 वोल्ट, I2 कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम दिस फार्मूला V upon I is equal to R. We can say that V1 upon I1 is equal to V2 upon I2. V1 की वैल्यू 220 वोल्ट, I1 की वैल्यू 3.4 एम्पियर, V2 की वैल्यू 110 वोल्ट, I2 कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से I2 क्या होगा? 1.7 एम्पियर. सो दिस इलेक्ट्रिक आयरन विल ड्रॉ 1.7 एम्पियर ऑफ करंट. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ. सो इस एक्सपेरिमेंट में एक सर्किट बनाया गया है. इस सर्किट में ए से एमीटर को डिनोट किया गया है. एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं. फिर V है, V वोल्ट मीटर है. वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट हम लोग मेजर कर सकते हैं. तीसरा है कैपिटल R. कैपिटल R रेसिस्टर है और B बैटरी है. K फॉर की एंड R स्टैंड्स फॉर रियोस्टैट. सो इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन में है रेसिस्टर से और एमीटर पूरे सर्किट में
सीरीज कनेक्शन में है। सो ये टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, कि हम लोग किस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। कि ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, और जैसा कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, if in the resistance of a wire, here the wire used in the circuit is wire of nichrome, the ratio potential difference upon current is constant. It means कि if the ratio V upon I is constant, then we can say that Ohm's law will be verified. Okay, so इस complete circuit में अगर हम ये फाइंड आउट करें कि V upon I का जो रेशियो है वो हर बार कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रेफर फिगर, द सर्किट इज कंप्लीटेड यूजिंग की एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट यूजिंग रियोस्टेट एंड बोथ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर इज नोटेड। इसका मतलब है कि इस सर्किट में की का यूज़ किया गया है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को सर्किट में पास किया जा रहा है रियोस्टेट के हेल्प से, और जब करंट पास किया जा रहा है तो उस केस में वोल्ट मीटर का भी रीडिंग लिया जा रहा है, साथ ही साथ एमीटर का भी रीडिंग लिया जा रहा है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज, अगेन द सेटिंग ऑफ रियोस्टेट इज चेंज्ड फॉर अ फ्रेश टू गेट अ फ्रेश पेयर ऑफ रीडिंग इन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। इसका मतलब ये है फिर से नेक्स्ट टाइम रियोस्टेट से अनदर वैल्यू ऑफ करंट पास किया जा रहा है सर्किट में, और फिर से हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग ले रहे हैं। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड टू गेट डिफरेंट वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग, कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जा रहा है कि हर बार अलग अलग रीडिंग हम ले वोल्ट मीटर और एमीटर का। द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज कैलकुलेटर, और इस तरीके से हर बार V अपॉन I का रेशियो कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये हम देख सकते हैं कि हर बार जो V अपॉन I की जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। सो बेसिकली ओवरऑल इस स्लाइड पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्किट बनाया गया है और उसमें हर बार रियोस्टेट के हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को पास किया जा रहा है सर्किट में, और जब भी करंट पास किया जा रहा है हर बार वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग ली जा रही है और एमीटर से करंट की रीडिंग ली जा रही है, और हर एक बार V अपॉन I का रेशियो फाइंड आउट किया जा रहा है। और हम ये देख सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि जब भी V अपॉन I का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। So in this way we can say that Ohm's law can be experimentally verified. Next topic is what is conductor, what is resistors, and what are insulators. So good conductors क्या है, ये conductor क्या है? Substance having very low electrical resistance is called good conductors. ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मेटल या ऐसे मैटर जिसमें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है वो गुड कंडक्टर कहलाता है। तो जो भी गुड कंडक्टर होगा दैट विल हैव द कैपेसिटी कि उसमें मैक्सिमम करंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट पास हो सके। सो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। Next is resistors. Substance having very high electrical resistance, कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो वो रेजिस्टर्स कहलाएंगे, जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीन, इन सब में रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दे आर गुड
resistors. Next point is insulators. Insulators क्या है? Substance having infinitely high electrical resistance. ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रबर एंड वुड, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इसमें पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. Resistance of all pure metal increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature. So actually होता क्या है कि resistance of a conductor directly proportional to length of the conductor के होता है. R is directly proportional to L. Next point is resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor. It means that R is inversely proportional to A. And nature of material, कि कंडक्टर किस सब्सटेंस का किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पे भी इस पॉइंट पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. लास्ट है टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, कि अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटती है. सो इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हम किसी भी मटेरियल का बढ़ाते हैं या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे. साथ ही साथ जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स हैं, उसके साथ भी कोलाइड करते हैं. इस कोलिशन की वजह से रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होता है. इस कोलिशन की वजह से जो भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. और अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिशन आपस में घटता है. साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिशन पॉजिटिव आयन कर्नल्स के साथ भी या पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के साथ भी घटता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है. और टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता है. So as from the previous slide, resistance of the conductor is directly proportional to length of the conductor, and from the second point, resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor. और जब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट आता है. दैट कांस्टेंट विल बी रो, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर. और we can say that rho will be equal to R into A upon L. It means कि resistivity of the material of conductor will be equal to resistance of the conductor into area of cross section of the conductor upon length of the conductor. And if area of the cross section of conductor is equal to 1 meter square and length of the conductor will be equal to 1 meter, then rho will be equal to R. It means कि अगर हम जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर ले रहा है और लेंथ को 1 मीटर ले रहा है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर किसके बराबर हो जाएगा? वो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगा. और इस फॉर्मूला से रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L के फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. Next is
The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance, which is 1 meter long and 1 meter square in cross section. कि जैसा हमने पीछे देखा, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस किसके बराबर होगा? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर, जो किसके इक्वल है? 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस. कि किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पे, कि जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, किस चीज़ का वो बना हुआ है, साथ ही साथ टेम्परेचर कैसा है. और रेसिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है. Thank you. Please like and subscribe my channel, and also please share my videos. Thank you.